Hello, dear students. Welcome to today's class. Children, today I thought that I would be interacting with you in this mode because there were certain important things that I wanted to show you from the book. Uh, After every, paragraph, some points were to be marked. So I thought, ki, let me do it from the book itself. That's why I have chosen this mode of interaction where I will be giving you some important points. Like in the last class, we have talked about the city of Kannauj, the Gurjara Pratiharas, the Rashtrakutas, and the Palas. They have been always fighting for this place called Kannauj, one of the historically very important places. Got it, children? So please do remember about the city of Kannauj. The rulers who were there, they fought with each other, and especially three of the rulers were there, so that's why it is called as the tripartite struggle. Okay. इसके बाद what you needed to know is कि हमारे यहाँ पे in India there were some temples which were very well known all through the world. पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम था. And the rulers outside, I mean in different parts of the world, they always wanted to come and see कि आखिर ये है क्या. One such great temple was the Somnath temple. So the ruler of Ghazni is in Afghanistan. वहाँ के रूलर के दिमाग में बार बार ये बात चल रही थी दैट कि आखिर लोग सोमनाथ टेम्पल के बारे में इतनी क्या बातें करते हैं. What do the people talk and what is the temple like? So Mahmud of Ghazni, he came here. He ruled from 997 to 1030, and he has his control over the parts of Central Asia, Iran, and the northwestern part of subcontinent. Subcontinent में अक्सर he had been raiding, and he always wanted to target wealthy temples, big temples, you know. So Somnath was one such big temple, uh, which is in Gujarat. इसमें कहते हैं कि सच में हीरे मोती जड़े थे इस टेम्पल में. एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया, सोमनाथ टेम्पल. कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना. तो all this wealth that Mahmud was carrying away was used to create a splendid capital. गजनी में एक बहुत बड़ा कैपिटल सिटी बना. सुल्तान महमूद क्या था ना, he was very interested in finding out more about the people, and he entrusted. Sultan always wanted that the whole world should know about him. पूरी दुनिया को उनके बारे में पता होना चाहिए. So he appointed one very big scholar. उनका नाम क्या था? अल बरूनी. और इन्होंने कहा कि write the history of this place. So please remember the name of this book, which is called as the Kitab ul Hind. क्या नाम था? Kitab ul Hind. Okay, important source for historians. And he consulted the Sanskrit scholars. They wanted to prepare this account. And the kings who were engaged in warfare हमेशा मारपीट में लगे रहते थे. Chamhanas were there. They were known as the Chauhans. They ruled over the region around Delhi and Ajmer. And Chamhana rulers में सबसे important ruler was Prithviraj III. He defeated the Mahmud Ghori, Muhammad Ghori. ये Ghori and Ghazni. Mahmud of Ghori and Mahmud of Ghazni were the two people who were really interested to capture India. आप इनका नाम ज़रूर से याद रखना. Got it, children? So Mahmud Muhammad Ghori 1191 and lost to him in 1192. ये राजस्थान के जो रूलर्स थे, they were very brave people.
राजस्थान में सबसे बड़े बड़े फोर्ट आपको राजस्थान में मिलेंगे। क्यों? वाई? बिकॉज सबसे ज़्यादा आक्रमण बाहर के लोगों का, ऑल द इन्वेडर्स who were coming to India, they were coming through राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान के रूलर्स उनको रोकते थे। वो अगर कामयाब नहीं हो पाते थे तो दे यूज टू एक्सटेंड, तब वो क्या होता था, इंडिया में घुस जाते थे और फिर बहुत ज़्यादा मार काट मचती थी। एंड ऑल दैट यू नो, आफ्टर इन्वेजन व्हाट हैपन्स, the rulers who come to invade the country, they are very cruel people. Got it? अब हम किनके बारे में पढ़ रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू नो अबाउट चोलास। Children, this map work was there. I just wanted you to see this map work because इसमें आपको कुछ ऐसे नाम मिलेंगे which are still existing. एक है ये थांजावुर, उरायूर, मदुरई. मदुरई is said to be one of the most beautiful places in India. बेंगलुरु है, मदुरई है. साउथ इंडिया में lot of cleanliness is there and lot of beautiful places are there. Got it? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी. I wanted you to know about it. तो कल्याणी में, बादामी में, there were the Kadambas, and Cholas were there, who have built a very big city in south in Tamil Nadu, which was also called as Gangaikonda Cholapuram. Now, Urayur se Thanjavur tak. I would again like you to see the map here, children. ये देख रहे हैं उरयूर और थंजावुर. ये जो टू प्लेसेस थे, इसके बीच में द एम्पायर दैट रूल्ड वाज द चोलास. चीफली जिनका नाम था मुट्टरैयार. मुट्टरैयार, ठीक है, नियर कावेरी डेल्टा के पास इनका ये देवर रूलिंग. एंड पल्लवा के कांचीपुरम विजयालया के एंशियंट चीफ फैमिली था इनका, चोलास का था, फ्रॉम मुरायूर. दे कैप्चर डेल्टा. चोलास ने क्या किया? दे कैप्चर्ड इट फ्रॉम मुट्टरैयार. ठीक है, मुट्टरैयार जो थे मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी में, इन्होंने फिर अपना टाउन बनाया थंजावुर में. एंड एक बहुत बड़ा टेम्पल है मदुरई में. वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स इज देयर. मदुरई में तो बहुत टेम्पल्स हैं, लेकिन यहाँ थंजावुर में वन वेरी बिग टेम्पल इज देयर विच इज निशुंभसूदिनी टेम्पल. क्या नाम है टेम्पल का? निशुंभसूदिनी. गॉट इट? इसके बाद आसपास के जो किंगडम थे उसको इन लोगों ने कॉन्कर किया. एंड दे ग्रू इन साइज एंड पावर, बढ़ते चले गए. पांडियंस वेर देयर, पल्लवास वेर देयर. साउथ में, नॉर्थ में, हर तरफ दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड इट वॉज मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम. amongst the Cholas, most famous Chola ruler Rajavan, and he became king. कब बने king? 985 में. Most of these areas में they have expanded themselves. They reorganized the administration of the empire. And राजा के जो सन थे, राजेंद्र वन, he continued his policies and raided the Ganga Valley, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे, यहाँ पे दे डेवलप्ड अ नेवी. पानी के ऊपर भी, लैंड के ऊपर तो इनका राज होना ही चाहिए, पानी के ऊपर भी दे वांटेड टू कंट्रोल द कंप्लीट पावर. गॉट इट? सो प्लीज रिमेंबर, राजा वन एंड राजेंद्र वन, both the kings were very famous. They are really great sculptors. ऐसी ऐसी मूर्तियां बनवाई हैं ना कि मास्टरपीस आज तक है. Till date it is preserved and it has been carrying from one generation to the other generation. Big temples of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram. इसने बनाया था राजा वन ने एंड राजेंद्र चोला ने. आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल मार्वल्स. आई मीन ऐसे टेम्पल्स मिलना बहुत मुश्किल है. दैट इज वॉट.
चोला टेम्पल्स में सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स होते थे एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन यूज टू हैपन टेम्पल्स में लॉट ऑफ लैंड वॉज देयर ये जो इन लैंड से जो प्रोड्यूस होता था इससे क्या होता था ये जो लैंड से दे प्रोड्यूस दैट वाज देयर एंड ऑल द मनी दैट वाज देयर इससे दे यूज टू मेंटेन द बिग टेम्पल्स और टेम्पल्स के पास बहुत सारे लोग थे जिनका की लाइफ चलता था देयर लाइफ डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स कमिंग फ्रॉम द टेम्पल दैट वाज प्रीस्ट गार्लैंड मेकर्स कुक स्वीपर्स म्यूजिशियंस डांसर्स तो टेम्पल खाली वर्शिप के लिए ही नहीं था दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑल्सो सारी चीज़ें होती थी टेम्पल के आसपास ये जो क्राफ्ट्स था टेम्पल का ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव इनके जो ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स थे एक्सेलेंट थे एंड ब्रॉन्ज इमेजेस जो है मोस्ट फाइन इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में ऐसे आई टोल्ड यू पहले ही मैंने बताया द काइंड जैसी मूर्तियां इनके टाइम पे बनी हैं जैसी चीज़ें इन लोगों ने बनवाई हैं इट इज़ मास्टरपीस हार्डली फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड believe me children and most images are of deities भगवान की images हैं and it was sometimes of devotees also ये क्या करते थे they used to do agriculture and irrigation many achievement are there चोलास का मैप 2 अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा river Kaveri has into branches several small channels में and बे ऑफ बंगाल में जाने के पहले लॉट ऑफ थिंग्स वेयर देयर लॉट ऑफ ब्रांचेस आर देयर इसके बाद दीज चैनल्स कभी ये जो पानी जिसमें बहता है कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी बहने लगता था तो नेसेसरी एग्रीकल्चर में वॉट एवर वाटर वॉज रिक्वायर्ड दैट केम फ्रॉम रिवर कावेरी ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ द रिवर तो राइस के कल्टीवेशन के लिए वॉट एवर वाटर वॉज नीडेड दैट वॉज अवेलेबल फ्रॉम रिवर कावेरी ओके इसके बाद एग्रीकल्चर तमिलनाडु में इट हैज़ डेवलप्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल 5th and 6th सेंचुरी में क्या हुआ लार्ज स्केल कल्टीवेशन वॉज देयर बहुत सारी जगह पे ना दे क्लियर द फॉरेस्ट एरिया हैज़ टू बी क्लियर्ड एंड लैंड वॉज टू बी लेवल्ड क्योंकि फॉरेस्ट तो उबड़ खाबड़ होता है ना कहीं ऊंचे पे ट्री है कहीं नीचे में ट्री है पूरे लैंड को इन्होंने लेवल किया अगर हल चलाना है खेती करनी है तो प्लेन लैंड चाहिए ना पहाड़ों पे कैसे खेती होगी फिर वो स्टेप फार्मिंग हो जाएगी दैट वुड बी अब क्या हुआ जस्ट सी हाउ दीज कैनाल्स वेयर बिल्ट आपको मैं ये फोटो दिखाना चाह रही थी लुक एट दिस पिक्चर क्या है ये पिक्चर वॉट इज दिस पिक्चर एंड वॉट इज दिस पिक्चर टॉकिंग अबाउट इट इज स्लूस गेट तमिलनाडु में रिवर्स के बीच में इस तरह का कंस्ट्रक्शन मिलता है विच इज कॉल्ड एज द स्लूस गेट वॉट इज दिस स्लूस गेट स्लूस गेट इज रेगुलेटिंग द ओवरफ्लो ऑफ वाटर पानी बहुत ज़्यादा जब ऊपर आएगा ना तो इससे क्या होता है कि पानी शहर में घुसने से बच जाएगा इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर तेज पानी का जो बहाव आ रहा है ना इस तरह की चीजें रहेंगी तो वहां पानी टकरा के रुक जाएगा ठीक है वाटर विल नॉट एंटर इनटू द सिटी सो स्लूस गेट इज अ वुड और मेटल बैरियर टू कंट्रोल वाटर फ्लो ठीक है इन अ रश व्हेन द वाटर इज कमिंग तो it stops the water flow irrigation work में planning चाहिए था lot of planning was needed and most new rulers as well as people who were living in the village all these activities they used to participate large scale participation was there got it इसके बाद there was the administration of the empire how the administration was happening सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स वॉज देयर ये जहाँ पे किसान रहते थे दैट प्लेस वॉज कॉल्ड एज ऊर
lot of irrigation was there, agriculture was there. And ये सारे जो ग्रुप्स थे, so many woods together, मिलके क्या बनाते थे? They used to make नाडू. नाडू में सारे विलेजेस मिलके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, इंक्लूडिंग जस्टिस होना चाहिए, टैक्सेस होना चाहिए एंड ऑल दिस. अब रिच पीजेंट्स ओवर देयर, वेल्लेला कास्ट, they were exercising control over the नाडू में जो भी हो रहा था उसमें Vellala peasants were there, they were controlling all the affairs. Chola government was there. Under the supervision of Chola government, everything was controlled. So Chola kings ने क्या किया? कुछ rich land owners को दिया titles जैसे Movenda Velari, okay, Arayyar. मतलब द लैंड ओनर्स हु वेर देयर, जमींदार टाइप के जो लोग थे, जो बहुत ही रिच थे, बहुत ही अमीर थे, उनको दे हैव गिवन सम बिग टाइटल्स जैसे मुवेंडा वेलन, अरैयार, मार्केट्स ऑफ रेस्पेक्ट, एंड एंट्रस्टेड देम विथ इंपॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर. बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेस, अलग अलग लैंड्स थे. चोला इंस्क्रिप्शंस में वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड. वेलान वागाई मतलब अलग अलग लैंड्स का अलग अलग नाम था. डिफरेंट नेम्स वाज गिवन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स. अब जैसे वेलान वागाई इज देयर. वेलान वागाई क्या है? नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स को दिया जाता था. इट वाज गिवन टू द पीजेंट्स प्रॉपरेटर्स. peasants were there, उनको ये हैंड ओवर किया जाता था, which was called as Velan Vagai. Then Brahmadeya, that was gifted to the Brahmins. These kind of lands were gifted to the Brahmins. Then Shalabhoga, कोई भी स्कूल है, I mean any school that is maintained, it is land for the maintenance of the school. Then Devadana, तिरुनवाट्टुकानी, ठीक है. टेम्पल्स को बहुत सारा लैंड दे यूज टू गो गिव टू द टेम्पल, कि मंदिर है, मंदिर की देखभाल के लिए वो ये सारा लैंड ग्रांट दे रहे हैं. दैट वाज कॉल्ड एज देवदान. देव मतलब देवता के नाम पे जो दान किया गया है, दैट वाज कॉल्ड एज द देवदान. ओके. देन Pallichandam, land donated to Jain institutions. You know, lot of Jain temples were there, lot of Jain people were there, and बहुत सारा दान धर्म का काम और बहुत तरीके के religious related work was done by them. It was called as Pallichandanam. Got it? Brahmins क्या होता था? They received land grants, which is called as Brahmadeya. तो लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स वेर देयर कावेरी वैली में एंड अदर पार्ट, साउथ इंडिया के अदर पार्ट्स में भी. तो हर ब्रह्मदेय जो था, इट वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली. एक सभा होती थी जो ब्रह्मदेय का देखभाल करती थी. एंड ब्राह्मण लैंड होल्डर्स वेर देयर. ये क्या होता था? दे वर्क, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग काम करते थे. दे यूज्ड टू वर्क वेरी एफिशिएंटली. ब्रह्मदेय जो था, okay, and Brahman landholders were there. सारा काम काज कौन देखता था? All the work was being seen after by the Brahmins. The assemblies were working very efficiently, and हमको कहाँ से पता चलता है? We come to know about it in detail in inscriptions. कभी स्टोन पे, on the stone walls of temples, ट्रेडर्स का एसोसिएशन था. लॉट ऑफ ट्रेडर्स यूज्ड टू लिव एट सम प्लेस. इट वाज कॉल्ड एज नगर्स. आज हम क्या कहते हैं? नगर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नगर? सिटी इज कॉल्ड एज द नगर. तो नगरम पहले भी था, जिसमें कि दे यूज्ड टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द टाउन. ट्रेडर्स का एसोसिएशन था, विच वाज कॉल्ड एज नगरम, एंड दे परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द टाउन्स.
अब हाउ डू वी कम टू नो अबाउट देम, इनके बारे में हमको इतनी जानकारी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है? चिल्ड्रन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि व्हेन वी आर स्टडिंग दिस काइंड ऑफ अ हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा है दैट सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड सोर्सेज. इंस्क्रिप्शंस आर देयर जो हमको उत्तरा मेरूर से मिले हैं. उत्तरा मेरूर कहाँ पे है? चिंगलपुट में, डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस आर गिवन टू अस, जिसमें कि वी कम टू नो अबाउट सभा. पता है सभा का एक जो सिस्टम था, हम व्हाई आर वी स्टडिंग सो मच अबाउट द चोला डायनास्टी and their administration, because the administration during Chola dynasty was amazing, one of its own kind. कहीं नहीं मिलता है इस तरह का. So Sabha was organized and a lot of separate committees were there. Irrigation work देखने के लिए, garden, temple, जो भी कमिटी के मेंबर्स थे उनका नाम लिखा होता था स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ. पाम लीफ का एक छोटा सा टिकट होता था उसके ऊपर. सो ये सारे टिकट जो है इट वॉज पुट इन टू एन अर्दन पॉट. छोटा सा मिट्टी का एक घड़ा ले लेते थे और उसके अंदर में सब लोगों का नाम लिख के डाल दिया जाता था. आप ये समझो कि किस तरह से डेमोक्रेसी वॉज प्रैक्टिस्ड इन दोज डेज. How democracy was practiced. तो young boy was asked कि ये जो टिकट है जैसे लॉटरी नहीं होती है. Yes, we are not using the word lottery here, but then lottery type of a thing used to happen. तो क्या है, अब now we are getting, अब just now that I was saying, we are getting so much of information from the inscriptions and from the text. अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से ये सारी जानकारी मिली है हमको. तो सभा में कौन मेंबर हो सकता था? हु ऑल पीपल कैन बिकम द मेंबर ऑफ द सभा. तो जो कि सभा के मेंबर बनना चाहते हैं उनके पास सबसे पहले तो लैंड होना चाहिए, जहाँ से कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है. एंड इनके अपने घर होने चाहिए. एज कितनी होनी चाहिए? यस, एज इज ऑल्सो. देखो दैट हाउ वेल द क्राइटेरियाज आर मेंशन्ड हियर. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड द सिस्टम वाज, राइट. देन वेदा पता होना चाहिए. 35 to 70 ईयर्स मीन्स सबसे छोटा एज जो है 35 है. एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इनको सारी जानकारी होनी चाहिए. एंड 3 ईयर्स में अगर कोई किसी कमिटी का मेंबर रहा है तो ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमिटी. दूसरी कमिटी का मेंबर वो नहीं बन सकते हैं. एंड जिसने भी अपना अकाउंट सबमिट नहीं किया है, एनी वन हु हैज नॉट सबमिटेड अकाउंट एंड अपने रिलेटिव का कितना, देखो हाउ मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी वॉज देयर. पैसे के मामले में हिसाब किताब पूरा क्लियर होना चाहिए. जस्ट सी, एंड ये हम नहीं कह रहे, वी आर नॉट सेइंग दिस, इट इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, इट इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस. सो क्राइटेरियाज वेर लेड डाउन सो क्लियरली. कौन बनेगा, कैसे बनेगा, टॉप पोजीशन किसको दी जाएगी, के बारे में पता चल रहा है. पावरफुल लोगों के बारे में पता चल रहा है. सो यू कैन सी समथिंग दैट इज मेंशन्ड हियर कि इंस्क्रिप्शंस में किंग के बारे में वी आर नोइंग, पावरफुल पीपल के बारे में वी आर नोइंग. पेरिया पुराणम नाम का एक देयर इज अ टेक्स्ट, 12th century तमिल वर्क, जिसमें कि वी कम टू नो अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन. आम आदमी की जिंदगी कैसे चल रही थी, उसमें कम टू नो अबाउट एक विलेज के बारे में पता चल रहा है, विच इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ नूर.
Adanur कहाँ है? It is a small hamlet of पुलैयार्स. ठीक है, पुलैयार नाम की एक छोटा सा गांव है जहाँ पे पुलैयास आर लिविंग. ये पुलैया कौन है? पुलैया वो लोग थे जो कि in South India, lot of caste system is practiced. This caste system is very strictly practiced in the South India. तो पुलैयास आउटकास्ट थे. ब्राह्मण्स ने, वेल्लल्स ने कहा था. छोटे छोटे इनके हट होते थे अंडर ओल्ड थैचेस मीन्स जो कच्ची जो छत बनी होती है. एंड laborers were there engaged in menial occupations. छोटे छोटे कामों में laborers लगे हुए थे. तो दो हट के बीच में, इन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हट्स, लेदर था, मतलब चमड़े का काम किया हुआ था. एंड लिटिल चिकन्स वेयर देयर हु वर मूविंग अबाउट इन ग्रुप्स. इमेजिन अ कंडीशन ऑफ अ विलेज इन दिस सिचुएशन. रियल सिचुएशन उस समय के गांव कैसे लगते थे. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो ब्यूटिफुल इज इट. ओके. एंड डार्क चिल्ड्रन वेयर देयर, जो कि ब्रेसलेट पहले हुए थे, आयरन के ब्रेसलेट्स. लोहे का कौन पहनता है, लेकिन दे यूज टू वेयर बिकॉज दे वेयर द पुअर पीपल. एंड मारूडू नाम का एक ट्री है. मारूडू ट्रीज आर देयर. अर्जुन की छाल जो होती है, अर्जुन का पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, वो वहाँ पे मारूडू कहते हैं. सच trees were there where these people were living. Little hollows were there in the ground. And लेदर, चमड़े की शीट पे ये सोते थे, शीट ऑफ लेदर. मैंगो ट्रीज था जिसके ब्रांचेस को वो ड्रम्स वेयर हैंगिंग. कोकोनट पाम्स आर देयर. तो लिटिल हॉलो वॉज देयर इन द ग्राउंड. छोटा सा एक छेद ग्राउंड में, हल्का सा गड्ढा करके. एंड दे यूज टू lay down there for the whole day. तो सुबह सुबह जब मुर्गा बांग देता था ना, जस्ट सी द रेड क्रेस्टेड कॉक, लाल कलगी वाला मुर्गा जो होता है ना, बिफोर डॉन, सुबह होने के पहले वो कुकड़ू करने लगता था. कॉलिंग द ब्राउनी पुलैयार को बुला ऑन देयर डेज वर्क, पूरे दिन के काम के बाद. एंड दिन कांजी ट्री वॉज देयर. उसके नीचे में बैठ के द वेवी हेड, मतलब घुंघराले बालों वाली पुलैयार वुमेन जो है, वो गाना गाते गाते चावल के खेतों में कटाई करती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी. एंड दैट इज हाउ द लाइफ हैज बीन शोन. तो चोला किंगडम and their administration is something that is very unique and we need to understand. Got it, children? So ये हमने कर लिया. Next class में we'll be discussing the question and answers. Till then, children, thank you so much and all the best to you.